लेट्स बाइट बयानबाजी। अमेरिका के अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ ने अमेरिका की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। रिचर्ड वोल्फ ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने पर अमेरिका को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह कदम अमेरिका के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। India is now, according to the United Nations, by population, the largest country on earth, having outgrown China, which used to have that position. If you do what the United States, what Mr. Trump is doing with these threats against India, who has a long historical relationship with Russia going back to the days of the Soviet Union and ever since, you are playing with a very different adversary. If you shut off the United States to India by big tariffs, India will have to find other places to sell its exports. But like Russia found another place to buy to sell its energy, India will sell its exports no longer to the United States, but to the rest of the BRICS. And what you're doing is you're hothouse fashion developing the BRICS to be an ever larger, more integrated, and successful economic alternative to the West. We are watching, as you put it, a historic moment, but it will be, for those with some humor, it will be the spectacle of the United States acting like it's the world's tough guy, as what it actually does is shoot itself in the foot. उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति पहल पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन सोमवार तक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार नहीं होते तो इसका साफ मतलब है कि पुतिन ने एक बार फिर ट्रंप को धोखा दिया है। मैक्रो का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब यूरोप और अमेरिका दोनों ही मोर्चों पर यूक्रेन संकट को लेकर नई रणनीतियों की तलाश की जा रही है। Première question, nous en avons évidemment longuement parlé avec Monsieur le Chancelier. Nous voulons espérer qu'une telle réunion bilatérale, à laquelle le président Poutine s'est engagé auprès du président Trump lorsque nous étions à Washington, c'est sa proposition. À l'issue de la longue réunion que nous avons eue ensemble il y a quelques semaines à Washington, l'appel a donné lieu à cette proposition du président Poutine au président Trump. Je vais voir le président Zelensky. Si ça n'est pas tenu lundi, échéance qui avait été fixée par le président Trump, je crois qu'une fois encore, ça voudra dire que le président Poutine se sera joué du président Trump. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour nous tous. Et donc, ça ne peut pas rester sans réponse. Et donc, les prochains jours, je pense, seront consacrés. Nous parlerons l'un et l'autre au président Trump dans le week-end. Nous verrons lundi ce qu'il en est. J'espère que cette réunion va se déclencher et se tiendra. J'espère que la réunion trilatérale se tiendra. Si nous devions constater la semaine prochaine qu'une fois encore, après des mois de promesses non tenues, ça n'était pas le cas, nous plaiderons très clairement pour que des sanctions primaires et secondaires soient prises, qui contraignent davantage la Russie et la conduisent à revenir autour de la table des discussions. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। भागवत ने यह भी जोड़ा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को केवल कल्पना बताते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि यह हकीकत है। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है, ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान है। आजमा के देख सकते। उद्धव ठाकरे ने मोहन भागवत के एक बयान पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। उद्धव ने कहा कि ऐसी बातें इसलिए कही जा रही हैं ताकि पार्टी के अंदर नए लोगों को शामिल करने की जरूरत न पड़े। 75 साल में उन्होंने कहा 2-3 बच्चे होने चाहिए। नहीं, मतलब उनको जो भाजपा की स्थिति है वो देखी नहीं जा सकती। उन्होंने जो सलाह दिया है कि 2-3 बच्चे होने चाहिए, वो शायद अगर वो सारे लोग मानेंगे तो उनके पार्टी को बाहर से लोग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उन्होंने दिया होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी पर टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से जुड़ा बताया। बघेल ने कहा कि उस वक्त राहुल गांधी मंच पर नहीं थे। हालांकि बघेल ने अपशब्द कहने वाले व्यक्ति की निंदा की। देखिए, सबसे पहली बात तो यह, गाली गलौज कोई भी करे ये उचित नहीं है, इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ओट चोर गद्दी छोड़ और संविधान रक्षा की बात और राहुल गांधी की जो 1300 किलोमीटर की यात्रा है उससे बखलाई हुई है। जिस मंच की बात कर रहे हैं, न वहाँ राहुल जी थे, न तेजस्वी यादव जी थे, न ही हमारे गठबंधन के कोई नेता था। और ऐसे में किसी ने कहा, किसी ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो अब ट्विटर में ये खबरें आ रही है कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का है। मैं इसकी तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्विटर में जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। और साथ ही वो व्यक्ति अभी कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह जी, उसके साथ खड़े दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये बखलाए हुए हैं। राहुल जी की यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी सदमे में थी, अभी तक एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन अब वो दूसरे प्रकार से वो घुस रहे हैं और ये वैसे भी षड्यंत्रकारी हैं, गोडसे के मानने वाले हैं, उनके प्रशंसक हैं। षड्यंत्र में इनका विश्वास है, तो संभवतः ये भी षड्यंत्र ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि एक उंगली कांग्रेस की तरफ करती है तो 3 उंगली उनकी तरफ होती है। महागठबंधन की बहुचर्चित वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि यात्रा को लेकर पूरे बिहार में जबरदस्त जन समर्थन देखने को मिला है। उन्होंने बीजेपी और एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इस ऐतिहासिक यात्रा से घबराई हुई है। और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीजों पे हमारी पैनी नजर है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी एक कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए और सिर्फ छलावा किया है। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। इनसे बड़ा कोई झूठा व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। इसलिए आप लोग सब लोग मिल करके आने वाला जो चुनाव है, सरकार बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? अब चाचा जी तो इतना पलटी मारे कि चक्री आ गए हैं। अब उनसे सरकार संभलना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2024 में हुए दंगे एक साजिश थे, जिसमें धार्मिक रूप से टारगेट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकारों के दौर में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से
सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने भर्ती के दोषियों को जेलों में बंद किया है। जो कांग्रेस ने जिस तरह का धोखा दिया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं और लगातार आप देख रहे हैं वो बंद होते जा रहे हैं, कलई से कलई खुलती जा रही है। अरे ऐसा ही भर्ती परीक्षा तो है, लेकिन पटवारी वाले भी पकड़े जा रहे हैं। और कल आपने देखा है, कल ऐसा ही भर्ती परीक्षा का कोर्ट ने फैसला दिया है। वो कोर्ट ने फैसला क्योंकि 2021 की भर्ती थी, कांग्रेस ने जिस तरह का युवाओं के साथ कुठाराघात किया, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने एसआईटी का गठन किया और हमारी एसओजी ने कितने लोगों को पकड़ा, 56 लोगों को बाहर निकाला, उसका आधार बनाने का काम हमने किया और उनको पकड़ के जेलों में बंद किया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात सिर्फ कही नहीं बल्कि उसे करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं बल्कि उसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष आपदा पैकेज तुरंत जारी करने की मांग की। सुक्खू ने कहा कि हमारे लोग आपदा से उजड़ गए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक विशेष राहत पैकेज नहीं आया। केंद्र सरकार से हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिली। अपने रिसोर्सेज से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम घर बनाने के लिए 7 लाख रुपया दे रहे हैं। घर में जो कपड़े और जो उनका सामान होता है, बिलोंगिंग्स होती है, उसके 70,000 रुपया दे रहे हैं। कच्चा घर टूट गया उसका 25,000 से 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ऐसा पैकेज कहीं और नहीं मिल रहा है। जो पशुधन गया है उसमें 55,000 रुपया गाय का दे रहे हैं, भैंस का दे रहे हैं। कोई रिलीफ पैकेज स्पेशल नहीं मिला। कहते 415 करोड़ रुपए आए। जो 2023-24 में आपदा आई ना, रिलीफ उसको कहते ना जिसकी पीड़ा होती है उस समय किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आज आपकी बात का कायल हो गया। आप अपने केंद्र की सरकार के पास जाइए, 23-24 का जो रिलीफ है वो 2 साल बाद भी नहीं दे रहे। 10,000 करोड़ के रिलीफ में 1,500 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया और क्या कहा कि जो आपने खर्चा किया है उसी में खर्च होगा। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.
Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat, Lect, and Let's Mike.